Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering from the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion on the subject which is thermodynamics, the subject of BTech third semester from Mechanical Engineering branch from AKTU syllabus. In our previous lecture we have discussed about first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, the concept of entropy, how it is related to uh, mechanical components, how it is related to our life, how it is related to heat, and about Rankine cycle, about uh, various thermodynamic processes we have discussed. Now we are having a discussion basically on the psychometric today. So, if we talk about psychometry, so it is basically the science which is dealing with the study of moisture. That means uh, the stream of science in which we study the behavior of moist air, the analysis of the effect created by the moist air, and about dry air, about saturated air. If we talk about their properties, if we talk about their effects, then the we can say the kind of science which is dealing with these concept is known as psychometry. So, first of all, dry air. What is dry air? Dry air is basically the mixture of gases like nitrogen gases, nitrogen gas, oxygen gas and hydrogen gas. So, if simply we take the sample of air, अगर हम लोग sample of air ले लें और अगर हम लोग ये कहें कि ये this is basically the mixture of only the mixture of nitrogen gas molecule, oxygen gas molecule and hydrogen gas molecule and rest of the gases. So, this content of mixture of gases is known as dry air, subject to the condition when the moisture is not present over here. That means moisture in the sense कोई भी water particles यहाँ पे present नहीं है, तो इस mixture को हम लोग कहेंगे this is basically dry air, जहाँ पर the maximum percentage होता है नाइट्रोजन गैस का होता है more than 70% और rest oxygen, then hydrogen and rest of the gases. About moist air, see it is basically the mixture of dry air and water vapor. अगर इसी ड्राई एयर में अगर हम लोग बात करें मॉइस्ट एयर की या मॉइस्चर की, मॉइस्चर इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर वेपर. अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वाटर वेपर भी है H2O और ये जो मिक्सचर जो कहलाएगा दिस मिक्सचर इज नोन एज मॉइस्चर इन दैट कंडीशन. दैट मीन्स मॉइस्ट एयर इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ gases like hydrogen, nitrogen and oxygen which is known as dry air along with the water vapor into it. That means, it is a mixture of dry air and water vapor. Now, saturated air. What is saturated air? See, if we are talking about the saturated air, that means the air in which there is maximum amount of water vapor into it, that is known as saturated air, or we can simply say that it is the air which contain the maximum amount of water vapor into it at a given temperature and pressure. ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर का मैक्सिमम कंटेंट अवेलेबल है फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट काइंड ऑफ एयर इज नोन एज सैचुरेटेड एयर. In order to understand the concept of saturated air, we need to understand the concept of evaporation, we need to understand the concept of vaporization. So, first of all, just take this is some, we can say the room is given to you, air is there and water is there. This is water. Okay. Now, what will happen? The air is there. Now, the air is having the ability to absorb water vapor into it. That means,
इसके अंदर एक एबिलिटी होगी जिसकी वजह से ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करना चाहेगी। तो होगा क्या, यहाँ पे दो प्रोसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो इवेपोरेशन होगा या तो वेपोराइजेशन होगा। वेपोरेशन जो होगा वो सारे टेम्परेचर्स पे होगा, और वेपोराइजेशन की अगर हम लोग बात करें या बॉइलिंग की अगर हम लोग बात करें, अगर बॉयल कर सकते हैं इसको, जिसमें टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा अगर हम लोग कर दें तो वो बॉइलिंग प्रोसेस कहलाएगा। तो उस कंडीशन में भी यहाँ से जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे इस एटमॉस्फेयर में। सो इवेपोरेशन की अगर हम लोग बात करें, सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स गोज इनसाइड द एयर at all the temperatures, and if we talk about the boiling, then it is a process in which the water molecules get converted into vapor form that goes into atmosphere at the temperature which is higher than the boiling point. That means अगर boiling point से अगर हम लोग इसको ऊपर गर्म कर देंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे वेपर फॉर्म में, अगर वो एयर में जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहेंगे। और इवेपोरेशन की बात हम लोग करें तो वो बेसिकली सारे टेम्परेचर से पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं उसको बॉयल किया जाए। तो होता क्या है उसमें, इवेपोरेशन में जो सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनके पास सफिशेंट एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो इस सरफेस को छोड़ करके एयर में चले जाएंगे, और जैसे ही एयर में जाएंगे सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एयर में मॉइस्चर कंटेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। सो बिकॉज द एयर इज हैविंग the ability to absorb a certain amount of water vapor, यानी इसके अंदर एक एबिलिटी है एयर के अंदर कि वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, ये वाटर वेपर चाहे बॉइलिंग हो चाहे इवेपोरेशन हो, वाटर वेपर इस एयर में बनते चले जाएंगे। लेकिन टिल हाउ लॉन्ग, यानी कब तक ऐसा होता रहेगा, एक पॉइंट तक जब तक इस एयर में मैक्सिमम वाटर वेपर ना पहुंच जाए। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा, इन दैट कंडीशन दिस एयर इज हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट, यानी इसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे, उससे ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं हो सकता है। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इसको कंटेन कर लिया है, अब उसके बाद इवेपोरेशन हो चाहे बॉइलिंग हो वो बंद हो जाएगी, यानी कंप्लीट हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एयर है, दिस एयर इज नोन एज सैचुरेटेड एयर। दैट मीन्स दिस एयर इज सैचुरेटेड फ्रॉम द वाटर पार्टिकल इनटू इट्स। नाउ नो इवेपोरेशन टेक प्लेस, यानी अब यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होगा, जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। सो वी कैन से सिंपली दिस एयर in which it contains the maximum amount of water vapor into it, that is known as saturated air. Okay, now अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, वैसे तो अभी हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझेंगे आगे होती क्या है। अब होता क्या है कि सैचुरेशन की कंडीशन पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। सैचुरेशन की कंडीशन पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। तो होता क्या है, इस कंडीशन में सैचुरेटेड एयर की कंडीशन में फाई की वैल्यू, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे कि फाई एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसको अगर हम लोग आर एच कहें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100% हो जाएगी। ठीक है, और अनसैचुरेटेड एयर के केस में इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100 से कम होती है। यानी इवेपोरेशन हो या बॉइलिंग हो या इवेपोरेशन हो जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप कर रहे हैं एयर में, उस कंडीशन में ये तभी पॉसिबल होगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आपकी 100% से कम होगी। यानी जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, यानी एयर सैचुरेटेड हो जाएगी, उस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से वो एयर में नहीं जा पाएंगे। उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम। इन दैट कंडीशन वी कैन से द अमाउंट ऑफ एयर इज सैचुरेटेड एयर in which it contains the maximum amount of water vapor into it. So in this way we have seen that saturated air is the air in which it contains the maximum amount of water vapor into it. Okay. So एक चीज़ और थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे यहाँ पे कि जब इवेपोरेशन हो रहा है तो लेटेंट हीट को मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, लेटेंट हीट को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन होता है। जैसे हम लोग स्वेटिंग अगर हम लोग देखें, यानी पसीने को अगर हम लोग देखें तो होता है क्या है, बेसिकली जैसे ही अगर हम लोग एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पर
द रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू अगर 100 से कम है तो उस कंडीशन में होगा क्या, इवेपोरेशन होगा, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल जब एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो हमें ठंडा फील होगा। तो बेसिकली उसका वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यही है कि बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% से कम है एटमॉस्फेयर की, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको ठंडा लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होता है, जिसके बारे में हम लोग डेफिनेशन डिटेल में आगे समझेंगे। तो बेसिकली सैचुरेटेड इज एयर इज द एयर in which it contains the maximum amount of water vapor into it. Specific humidity और humidity ratio, इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है इन तीनों का। अगर ह्यूमिडिटी बोलें, चाहे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलें, चाहे ह्यूमिडिटी रेशियो बोलें, बात एक ही है हमारी। तो इस ह्यूमिडिटी इज बेसिकली the amount of mass of water vapor present in unit mass of given air. That means ये अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, दिस इज द गिवन एयर, गिवन मॉइस्चर, यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन है, कहीं कहीं कुछ, कहीं कहीं नाइट्रोजन है, कहीं पे और भी गैसेस हैं, तो उसको हम लोग ड्राई एयर कहेंगे। लेकिन इसको मॉइस्चर कब कहेंगे, जब उनके साथ यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स ये H2O अवेलेबल हैं। In this condition, we say that this is moisture. Now, in this condition, what is specific humidity? It is simply the mass of water vapor present in unit mass of dry air, or we can say unit mass of given air. That means, अगर इनका मास, इन सब का मास अगर ऐड कर दें हम, अगर हम लोग कह दें दिस इज m डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है, तो उस कंडीशन हम लोग क्या कहेंगे, जो ये रेशियो आएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, यानी मास ऑफ वाटर वेपर, अगर इसको W से डिनोट करें हम लोग, दिस इज W इन द गिवन मास ऑफ इन यूनिट किलोग्राम मास ऑफ गिवन एयर, यानी अगर गिवन एयर का मास हम लोग अगर कुछ ले लें तो वो हम लोग कहेंगे दिस इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द गिवन एयर। इन दिस वे वी डिफाइंड दैट ह्यूमिडिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इनटू इट, यानी वाटर वेपर मास के फॉर्म में कितना अवेलेबल है गिवन एयर में, उस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे दिस इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द गिवन एयर। दिस इज इक्वल टू W विच इज डिनोटेड बाय, इसको अगर हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को अगर हम डिनोट करें तो उसको W से बेसिकली हम लोग डिनोट करेंगे। और अगर यूनिट की अगर हम लोग बात करें कि इसकी यूनिट कितनी होगी, तो जनरली इसकी यूनिट ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में हम लोग लेके चलते हैं। यानी ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए अगर 0.02 ग्राम पर किलोग्राम ये W की वैल्यू अगर दे रखी है, दैट मीन्स फॉर 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर वी आर हैविंग 0.02 ग्राम ऑफ वाटर। दैट मीन्स 1 किलोग्राम ड्राई एयर के लिए, 1 किलोग्राम मॉइस्चर, 1 किलोग्राम गिवन एयर के लिए हमारे पास जो वाटर कंटेंट है मॉइस्चर एयर में वो है हमारा 0.02 gram. In this way we can define the amount of specific humidity or humidity ratio in terms of this. Okay? अगर हम लोग बात करें, जैसे कभी कभी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो वाटर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि ह्यूमिडिटी हमारी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे जैसे गर्मियों के दिनों में, जैसे अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो होता क्या है, वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी या हम लोग कहें ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि वाटर कंटेंट आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। अब एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज बेसिकली द मास ऑफ वाटर वेपर एंड यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले किया। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W विच इज इक्वल टू द मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ एयर। mv इज द मास ऑफ वाटर वेपर, जितना भी गिवन वॉल्यूम में गिवन आपका जो सैंपल जो ले रखा है हम लोगों ने एयर का, उसमें अगर वेपर का मास अगर हम लोग लेके चलें mv और एयर का मास अगर हम लोग ma लेके चलें, तो W की वैल्यू या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू mv अपॉन ma होगी।
एम ए की वैल्यू गैस इक्वेशन से हम लोग लिख के चल रहे हैं कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी से। दिस इज गैस इक्वेशन, सिंपली इस गैस इक्वेशन से एम एक एयर के लिए हम लोगों ने गैस इक्वेशन लिख रखी है जिसमें एक एम ए की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, R is gas constant and T is temperature. In the same way, we can calculate the value of mV for water vapor, in which the PV is the amount of pressure, V is the volume given, RV is gas constant and T is temperature. We can simply divide this mV upon ma, we are getting the equation like this. This is equal to the expression फॉर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। होता क्या है यहाँ पे बेसिकली, प्रेशर के बारे में दे रखा है, वॉल्यूम के बारे में दे रखा है, गैस कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे दे रखा है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, अगर हमने जब डिवाइड किया है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर को सेम रखा है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक ही सैंपल हम लोग लेके चल रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम दोनों की कंडीशन में, वेपर की कंडीशन में हो चाहे एयर की कंडीशन में हो, वो अप्रॉक्सीमेट हम लोग बराबर लेके चल रहे हैं। दिस इज एजम्पशन। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर वाटर पार्टिकल्स का है वही टेम्परेचर एयर पार्टिकल्स का है। इस कंडीशन में हम लोग ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, उस कंडीशन में हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू सेम लेके चल रहे हैं। इसको डिवाइड करेंगे, आएगा क्या, आर की वैल्यू गिवन है 0.287 और दूसरी कंडीशन में आर की वैल्यू गिवन है 0.462, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय पी वी अपॉन पी ए। पी वी मीन्स pressure of water vapor, PA is the pressure of air. कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.622, PV अपॉन PT माइनस PV। PT क्या है, दिस इज बेसिकली द बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर इन द सेंस, इसको समटाइम्स हम लोग PV इज इक्वल टू PV प्लस PA, PV इज इक्वल टू PV प्लस PA बिकॉज दिस इज बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा, दो कंटेंट होंगे, एक एयर होगा एक वेपर होगा। जो एयर का पार्शियल प्रेशर है उसको अगर हम लोग ए लेके चलें और वेपर कंटेंट का पार्शियल प्रेशर उसको पीवी लेके चलें, तो टोटल अमाउंट ऑफ जो प्रेशर होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू पीवी प्लस पी ए। यहाँ पर पी ए को रिप्लेस किया गया है पीबी माइनस पीवी से, पीबी माइनस पीवी से। पीबी चाहे उसको बैरोमीटर प्रेशर को आप पीबी से रिप्रेजेंट करें चाहे पीटी से रिप्रेजेंट करें, बात एक ही है हमारी। तो ये सिंपली जो इक्वेशन हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आएगी, विच मस्ट बी रिटन समथिंग लाइक दिस। इन दिस वे, दिस इज द बेसिक इक्वेशन used in psychrometry for the calculation of specific humidity in terms of barometric pressure, in terms of partial pressure of vapor, in terms of vapor pressure, in terms of air pressure, or we can say the atmospheric pressure. So, in this way we can calculate the value of specific humidity from the given equation. अगर इसकी हम यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इन जनरल ग्राम पर किलोग्राम हम लोग लेके चलते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इफ वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में बेसिकली हम लोगों ने मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर या यूनिट किलोग्राम ऑफ गिवन एयर, उस कंडीशन हम लोग लेके चलें। यहाँ पर एब्सोल्यूट अगर ह्यूमिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in terms of mass present in unit volume of dry air। वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि यूनिट मास में लेके चले थे, अगर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे उस कंडीशन हम लोग ये कहेंगे, जो भी हमारी क्वांटिटी आएगी उसको हम कहेंगे दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ ड्राई एयर विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मीटर क्यूब। वहाँ पर ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में एक्सप्रेशन निकाल रहे थे। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम दे रखा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, तो वॉल्यूम के फॉर्म में हम लोग ग्राम पर मीटर क्यूब लेके चलेंगे। नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बारे में डिस्कशन पहले भी किया था हम लोगों ने, थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर टू द मास ऑफ वाटर वेपर
in the same volume of saturated air when it is saturated at the same temperature and pressure. See, relative humidity is basically the content of water in given air that shows that by how much amount it can hold the water into it with respect to its maximum capacity. For example, ये एग्जाम्पल अगर हम लोग मॉइस्ट एयर को लेके चलें तो इसमें ड्राई एयर भी है, कुछ वाटर पार्टिकल्स भी हैं। होगा क्या, इवेपोरेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया, वी हैव टॉक अबाउट इवेपोरेशन, वी हैव टॉक अबाउट बॉइलिंग। in both of the condition the certain amount of molecules escaped from the water and goes into the air. In that condition we can say that the evaporation or boiling take place. अब होगा क्या, जैसे ही बॉइलिंग या इवेपोरेशन होगा वाटर पार्टिकल्स एयर में जाएंगे, वाटर पार्टिकल्स एयर में जाएंगे। ये अगर मान लीजिए चलिए यहाँ पे वाटर है, वो इवेपोरेशन हो रहा है तो पार्टिकल्स एयर में जाएंगे, यहाँ पर वाटर कंटेंट हमारा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर वाटर कंटेंट पहले एक मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर दो, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। नाउ टिल हाउ लॉन्ग दिस प्रोसेस प्रोसीड्स, दैट मीन्स कब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, जब तक ये सैचुरेट ना हो जाए, क्योंकि इसके पहले ही हम लोगों ने सैचुरेशन के बारे में डिस्कशन किया कि सैचुरेशन होता क्या है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये सैचुरेट नहीं हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस एयर इज हैविंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट। होगा क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि द एयर इज हैविंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट, यानी एयर के अंदर एक एबिलिटी है जिसमें वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। कब तक एब्जॉर्ब करेगा, जब तक वो सैचुरेट ना हो पाए। जैसे ही सैचुरेशन आ जाएगा उससे ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा। दैट मीन्स हम ये करेंगे सर्टेन पॉइंट पे दिस इज सैचुरेशन, इन दिस कंडीशन इवेपोरेशन स्टॉप्स। इन दैट कंडीशन कोई भी मॉलिक्यूल्स एयर में अब नहीं जाएगा। ओके हम लोगों ने कह दिया दिस इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और इट इज द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ दिस एयर इन विच इट कैन होल्ड द वाटर वेपर इनटू इट। नाउ कोई भी एक गिवन कंडीशन में मान के चलिए, अगर सेम एयर को हम लोग कह दिया कि इस कंडीशन में हमें पता है कि मैक्सिमम कंडीशन में वो से x वैल्यू x1 वैल्यू होल्ड कर सकता है वाटर वेपर को, मैक्सिमम वैल्यू, गिवन वैल्यू सम x2। अब अगर RH हमको निकालना है तो क्या होगा कि अगर इसको अगर हम डिवाइड कर दें x1 से, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी, तो यहां पर हमारा RH की वैल्यू आ जाएगी। सो it shows the ability by how much amount it can hold the water vapor with respect to its maximum possibility. That means ये जो एयर है ये मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है, इसके रिस्पेक्ट में करंट कंडीशन में इसमें कितना वाटर अवेलेबल है, ये RH हमको बताएगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली RH से, या इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो ये बेसिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दैट मीन्स अगर किसी एयर की कैपेसिटी 90% है, कैपेसिटी इन द सेंस RH की वैल्यू 90% है, दैट मीन्स इट कैन होल्ड 100%, बट राइट नाउ इट इज होल्डिंग ओनली 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी। दैट मीन्स अगर 100% ये होल्ड कर सकता है वाटर वेपर को, लेकिन इस कंडीशन में इसने जो वर्किंग कंडीशन है इसकी ओनली 90% है, यानी इस कंडीशन राइट नाउ इट इज ओनली वर्किंग 90%, और वी कैन से इट इज ओनली होल्डिंग द 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी in terms of water vapor. Okay. So, in this way we can define the value of
RH और वी कैन से रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हम लोग ये बात करें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मान लीजिए 100% गिवन है, दैट मीन्स उस कंडीशन में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वाटर वेपर को अपने कंटेंट होल्ड करने के लिए, दैट इज 100%। उस कंडीशन में जो वर्किंग है इसकी 100% है। अगर 50% कह दें तो उस कंडीशन हम लोग ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू राइट नाउ 50% है, ये होल्ड कर सकता है 100% के लिए। ओके तो इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। सो इन टर्म्स ऑफ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग देखें तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई के फॉर्म में और परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे इसको। अगर इसकी डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें इसको फिर से, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर जो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है इसको ध्यान में रखना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बेसिकली हम लोग को लेके चलना है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे। हमें टेम्परेचर और प्रेशर उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर प्रेशर हम लोग चेंज करेंगे RH की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग रेफरेंस लेके चलना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली होती क्या है। अगर हम लोग बात करें, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है वहाँ पे इवेपोराइजेशन नहीं होगा। वेपोराइजेशन नहीं होगा इसका मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में अब नहीं जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे तो होगा क्या, जैसे कहीं कहीं पे अगर हम लोग कोस्टल एरिया की हम लोग बात करें, इसके पहले भी डिस्कशन हम लोगों ने किया था, जहाँ पर अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है 100% है तो होता क्या है वहाँ पर जो आपका अगर मान लीजिए पसीना आ रहा है तो वो सूखता नहीं। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में जाएंगे नहीं। जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जाएंगे नहीं तो आपको ठंडा महसूस नहीं होगा। तो उस कंडीशन हम लोग ये कहेंगे कि इवेपोरेशन नहीं होगा और जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, 100% होगी। मान लीजिए एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हम लोग गए हुए हैं, वहाँ पे RH की वैल्यू 80% है या 40% है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन होगा। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर स्वेटिंग की हम लोग बात करें, पसीने की हम लोग बात करें, तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आपकी जो स्किन है उसको छोड़ करके एटमॉस्फेयर में जाएंगे, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हमें ठंडा महसूस होगा। उस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पंखा चलाएं बेसिकली जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 100% से कम है तो वहाँ पर हमें बेसिकली ठंडा महसूस होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन होता है, क्योंकि RH की वैल्यू 100% से कम है और जो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं हमारे स्किन को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में जाएंगे और होगा क्या उस कंडीशन में, जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें ठंडा महसूस होगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बेसिकली ये बताती है हमको कि कितने अमाउंट ऑफ इसकी एबिलिटी क्या है और कितने अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इस पर्टिकुलर कंडीशन में अवेलेबल है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में। आगे डिस्कशन करेंगे साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में। तो देखते हैं आगे की क्लासेस। ओके, थैंक्स अ लॉट।